ریگستان کے بیچ ایک قوم رہتی تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی۔ ان کے بازو مضبوط، ان کا غرور اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ انہوں نے کہا، ہم کو کون روک سکتا ہے؟ پھر ان کے درمیان ایک نبی کھڑے ہو گئے، چہرہ روشنی میں چھپا ہوا، اور پتھر سے نکلی اللہ کی ایک نشانی۔ بس ایک فیصلہ کرنا تھا، یا اطاعت یا تباہی، اور انہوں نے جو چنا اس نے ریگستان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ کہانی ہوا کے شور سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہوا خاموش تھی، عاد گر چکی تھی، ان کی لمبی جسم والی قوم مٹی ہو چکی تھی، ان کی طاقت ریت میں دب چکی تھی، مگر اللہ نے زمین کو سنسان نہیں چھوڑا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد وارث بنایا گیا۔ وارث، یہ لقب رحمت بھی تھا اور ذمہ داری بھی۔ ثمود اٹھائی گئی، انہیں پھر سے موقع دیا گیا، انہیں پھر سے زمین دی گئی، انہیں پھر سے امن دیا گیا۔ انسان جب تباہی دیکھتا ہے تو کچھ عرصہ ڈرتا ہے، پھر عادت ڈال لیتا ہے۔ سمود نے عاد کے علاقے کو چھوڑا۔ انہوں نے ہوا کی کہانی سنی تھی، انہوں نے دیکھا تھا کیسے تکبر نے قوم کو گلا دیا، مگر یاد دیر تک زندہ نہیں رہتی۔ سفر میں ایک بزرگ نے کہا، یہ مٹی گواہ ہے، جو اپنے رب کو بھولتا ہے وہ گرتا ہے۔ ایک جوان نے ریت اٹھا کر ہوا میں اڑا دی۔ ہم ان جیسے نہیں، ہم مضبوط زمین پر گھر بنائیں گے۔ سفر لمبا تھا، دن جلتا تھا، رات کا آسمان صاف ہوتا تھا، ستارے ان کے اوپر تھے، مگر انسان ستاروں سے نصیحت کم لیتا ہے۔ پتھریلی زمین، بلند چٹانیں، مضبوط ڈھانچے، یہاں ہوا تیز چلتی تھی، مگر ریت کم تھی۔ ایک مرد نے چٹان کو دیکھا، ہاتھ لگایا، پتھر سخت تھا، اس نے زور سے مارا، آواز گونجی، یہ ہمارا ہوگا، اور اس دن سے ان کا نظام بدل گیا۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹنا شروع کیا، دن بھر پسینہ بہاتے ہوئے، بچے دیکھتے اور عورتیں پانی لاتیں، مرد چٹان تراشتے، پہلے ایک چھوٹا سوراخ، پھر بڑا، پھر دیوار، پھر کمرہ، پھر دروازہ۔ کوئی شہر نہیں بنا، کوئی محل نہیں بنا، صرف پہاڑوں کے اندر گھر۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو، فخر کے ساتھ۔ فخر، یہاں سے دل بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ان کے پاس پانی کے چشمے تھے، ان کے پاس ریوڑ تھے، ان کے پاس مضبوط گھر تھے، ان کے بزرگ مشورہ کرتے، ان کے جوان لڑائی میں سخت تھے، انہیں محسوس ہوا، اب کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ انسان جب محفوظ محسوس کرتا ہے تو اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ لیکن تھمود میں سب برابر نہیں تھے، کبھی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تھے جو پتھر کے گھر نہیں، پتھر کے قلعے میں رہتے تھے، جن کے پاس مویشی بھی تھے، زمین بھی تھی، اور سب سے بڑی چیز آواز بھی تھی۔ وہ لوگ جو فیصلہ کرتے تھے، وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا تھا۔
वो लोग जो बाकी लोगों को छोटा महसूस कराते थे, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। ये अमीर लोग, वो अल्लाह के गुनहगार एक दिन अचानक नहीं बन गए, वो धीरे धीरे बने। पहली एक छोटी तकब्बुर, फिर एक छोटा जुल्म, फिर एक छोटा झूठ, फिर वक्त के साथ ये सब उनकी फितरत बन गई। और जब इंसान का दिल सख्त होता है, वो मानता नहीं कि सख्त हुआ है, वो सोचता है कि वो समझदार हो गया है। फिर अल्लाह ने उनमें से ही एक को उठाया, सालेह अलैहिस्सलाम, ना बाहर से ना अजनबी, उन्हीं की जबान में बोलने वाला, उन्हीं की खानदान में से। या कौम अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, तुम मिट्टी से पैदा हुए, तुम्हें ये ज़मीन दी गई, तुम पर एहसान हुआ, मगर तुमने शुक्र नहीं किया। लोग जमा हुए। एक सरदार ने हंसकर कहा, साले, तुम भी तो हमारे जैसे हो। दूसरा बोला, हम तुम्हें अकालमान समझते थे। अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु, क्या हम अपने में से एक बशर की पैरवी करें? तकब्बुर ने उन्हें अंधा किया। उनका मसला दलील नहीं था, उनका मसला गुरूर था। कुछ लोग ईमान लाए, छोटी तादाद, अक्सर कमजोर। उनके घर पहाड़ों के नीचे, सरदारों के घर बुलंद पत्थरों में। बीच वाले चुप, हमेशा की तरह। न हक का साथ, न बातिल का खुला इनकार, सिर्फ खामोशी। एक दिन जवानों का झुंड आया। अगर तू सच्चा नबी है तो हमें निशान दिखा, एक खास निशान, अपनी मर्जी का। और उन्होंने मांगा एक ऊंटनी इस खास पत्थर की चट्टान से, जिंदा, सामने, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दी। ये वक्त का एक ठहराव था, वो लम्हा जब अल्लाह का रहम सबसे ज्यादा जाहिर था। अल्लाह ने नाका को निशानी बनाया। सौलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की नाका है, इससे नुकसान मत पहुंचाना, इसका पानी का दिन अलग होगा। और सिर्फ एक हुक्म, इसे हाथ मत लगाओ। इतना छोटा इम्तिहान था। पहला दिन नाका चश्मे पर आई। लोग दूर खड़े देख रहे। दूसरा दिन उनका पानी। निजाम चल रहा था, मगर दिलों में जलन बढ़ रही थी। एक सरदार ने धीरे कहा, यह जानवर हम पर हुक्म चला रहा है। दूसरा बोला, कल को ये हमारे घर भी मांगेगी, अगले दिन वो हमारी जमीन, फिर हमारी जान तक मांग लेगी। हंसी, मगर हंसी के नीचे खौफ था। शहर में 9 अफराद थे, फसाद करने वाले। रात की महफिल, मशाल की रोशनी, पत्थर की दीवार पर परछाइयां, फसादगर एक। ये नाका सलेह की कुव्वत है। फसादगर 2। लोग डर कर उसकी बात सुन रहे हैं। फसादगर 3। अगर ये जिंदा रही तो हमारा असर खत्म होगा। सन्नाटा, फिर फैसला। रात सूखी थी, हवा भारी थी। एक बदनसीब आगे बढ़ा। इज़ इम्बासा अशक़ाहा, उनका सबसे बदनसीब खड़ा हुआ। उसने वार किया। नाका गिर गई। आवाज आई। लोग जमा होने लगे। एक जानवर, अल्लाह का, जिसको हाथ लगाने से मना किया गया था, खुले लफ्जों में बार बार। किसी ने कहा, साले, लो अपना अज़ाब। उन्होंने खुलकर इनकार किया
اور فخر کیا۔ 3 दिन अपने घरों में मजे कर लो। 3 दिन मोहलत, रहमत का आखिरी टुकड़ा। और उन्हें बताया गया 3 निशानियां। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले हो जाएंगे, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन सयाह, निशानी पे निशानी। 3 दिन देखो, 3 दिन बाद भी हम यही बैठेंगे और साले का ये वादा हवाओं में उड़ गया होगा। पहला दिन सुबह, चेहरे जर्द, लोग चुप। कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, सिर्फ रंग बदल गया। क्या वाकई कुछ होगा? मर्द ने नजर हटा ली, बच्चे खामोश थे, रात को नींद कम आई। चेहरे और बदले लाल, आंखों में डर, बाजार सूना, कोई हंसी नहीं। एक सरदार ने कहा, ये सब वहम है। मगर उसकी आवाज कमजोर थी। सुबह भारी थी, हवा ठंडी थी। स्याह स्याह चेहरा, स्याह हाथ, स्याह जिल्द। कोई बात नहीं कर रहा था। पत्थर के घर भी बोझ लग रहे थे। लोग अपने कमरों में बैठ गए। इंतजार, सिर्फ इंतजार। उन 9 ने कसम खाई, रात को सालेह को कत्ल करेंगे। उन्होंने सोचा, अगर नबी चला गया तो अजाब का दावा भी चला जाएगा। मगर कुरान कहता है, व मकरू मकरं व मकरना मकरन। उन्होंने चाल चली, अल्लाह ने तदबीर की। उनकी चाल उन पर पलट गई, उनकी लाशें भी इबरत बन गईं। सुबह, आसमान साफ, फिर एक आवाज। न आग, न पानी, न जमीन का फटना, न बिजली का गिरना, बस सैहा। और थमूद को एक हद से बड़ी आवाज ने पकड़ा तो वो रह गए अपने घर में औंधे पड़े। एक चीख जो रूह चीर दे, फिर रजफा। जमीन हिली, पत्थर का घर हिला, लोग खड़े भी न हो सके। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन। वो अपने घरों में गिर कर रह गए, न भाग सके, न चीख सके, बस खत्म। सालेह अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। आए मेरी कौम, मैंने पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। पत्थर के घर रह गए, मजबूत, सख्त, खामोश, मगर अंदर कोई नहीं। कुव्वत बचा ना सकी, तामीर बचा ना सकी, साजिश बचा ना सकी। आज हम भी इमारतें बनाते हैं, हम भी कहते हैं हम महफूज हैं, हम भी निशानियों का मजाक उड़ाते हैं, हम भी कहते हैं अभी वक्त है। समूद ने भी यही कहा था, 3 दिन, बस 3 दिन। अजाब हमेशा आग की शक्ल में नहीं आता। कभी एक आवाज, कभी एक झटका, कभी एक हुक्म, और सब खत्म। सोचो, अगर निशानी तुम्हारे दरमियान हो और तुम उसे जलील करो, तो फिर तुम किस दिन का इंतजार कर रहे हो? क्या हम समूद से मुख्तलिफ हैं या सिर्फ हमारी मोहलत लंबी है? अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखें।